مکتبہ فکر کے لوگ جمع ہوئے اور وہاں پر ایک بہترین ماحول میں قیام امن کے لیے 15 نکاتی ایجنڈا پیش کیا گیا، جس پر تمام جماعتیں چاہے سیاسی ہو مذہبی ہو اور ہر مکتبہ فکر کے لوگ اس پر متفق ہوئے۔ لیکن بدقسمتی سے جن لوگوں کو امن گھاٹے کا سودا ہوتا ہے اور جن کا جنگ میں ہی خیر ہوتا ہے، انہوں نے یہ سارا پروسیس سبوتاج کرنے کے لیے جرگے میں ہمارے آئے ہوئے مہمان جن کا تعلق پی ٹی ایم سے تھا ان کو اسمبلی سے باہر اٹھا لیا۔ تو میری جب ان سے اس حوالے سے بات ہوئی، میں نے ان کو کہا کہ ایک تو آپ لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ زمینی حقائق سے اس طرح باخبر نہیں رہتے جتنا سیاسی لوگ رہتے ہیں۔ آپ لوگ عوام میں اتنا نہیں رہتے جتنا سیاسی لوگ رہتے ہیں۔ تو آپ یہ چیزیں نہیں سمجھتے اتنی جتنی ہم سمجھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ سمجھتے نہیں ہیں اور اگر کسی کے کہنے پر آپ لوگوں کو اٹھاتے ہیں تو جو آپ کے ایڈوائزرز ہیں وہ بھی انتہائی بے وقوف اور نالائق ہیں، کیونکہ یہ جو قدم آپ لوگوں نے اٹھایا ہے اس سے آپ کی ساکھ اٹھے گی نہیں، اس سے لوگوں کی دلوں میں آپ کی نفرت کم نہیں ہوگی لیکن مزید بڑھے گی۔ اور اس کا نتیجہ ہم نے دیکھا کہ پشاور یونیورسٹی کیمپس میں 78 سال میں پہلی دفعہ جو ہے ہمارے ادارے کے خلاف نعرے بازی ہوئی، اور یہ ان کی ایک بیوقوفانہ حرکت کی وجہ سے جو انہوں نے جرگے کے بعد کی۔ یہ صرف پہلا موقع نہیں ہے کہ جہاں پر ہم اچھے کام کی طرف جاتے ہیں اور وہ غلط مشوروں کی وجہ سے وہ الٹا ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے جو ابھی خیبر پختونخوا میں دہشت گردی لائی گئی ہے اس پر بھی ہمارے اعتراضات تھے، اور ہم پشاور سے لے کر تورغر کوہستان تک اور ادھر ڈی ای خان وزیرستان تک اور ادھر چترال اور باجاوڑ تک ہم چیختے رہے چلاتے رہے، پورے پختونخوا کی عوام پوری پختونخوا کی لیڈرشپ، کہ آپ ایک دفعہ پھر ان کو لا رہے ہیں تو یہ آپ خیبر پختونخوا کا نقصان بھی کر رہے ہیں اور پاکستان کا نقصان بھی کر رہے ہیں۔ یہ بند کمروں کی پالیسیاں جو آپ بنا رہے ہیں یہ آپ کے لیے بھی نقصان دہ ہیں، یہ پاکستان کے لیے بھی نقصان دہ ہیں۔ لیکن پہلے ہمیں یہ کہا گیا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں۔ ابھی جو ہے یہ آپریشنز کی تیاریاں کر رہے ہیں، تو یا یہ اس وقت جھوٹے تھے یا آج جھوٹے ہیں۔ ہمیشہ جب ہم تنقید کرتے ہیں تو ان کے لیے ہم سولوشن بھی دیتے ہیں۔ ہم نے امن جرگے خیبر پختونخوا کے امن جرگے میں ان کو یہ مشورہ دیا کہ آپ خیبر پختونخوا کے سٹیک ہولڈرز، چاہے صوبائی حکومت ہے چاہے وہاں کے پارلیمنٹیرینز ہیں، جو ہمارے قومی مشران ہیں، ہمارے قبائلی علاقوں کے مشران ہیں، ہمارے عمائدین ہیں، ان سب کو بلائیں، ان سب کو بٹھائیں، ان سب سے مشورہ کریں، اور جب آپ کلیکٹیو وزڈم سے کوئی قدم اٹھائیں گے تو یہ نتیجہ خیز ہوں گے۔ اس سے پہلے جتنے بھی 78 سال میں آپ نے جو فیصلہ کیا ہے اس سے ہمیں نقصان ہی ہوا ہے۔ ابھی ریسنٹلی ریجیم چینج آپریشن ہوا، یہ بتایا گیا کہ پہلے دن ہے جو ہے وہ پتہ نہیں کون سا انقلاب آ گیا، سٹاک ایکسچینج بھی اوپر گیا، اکانومی بھی بہتر ہوئی، جی ڈی پی بھی گروتھ کر گیا۔ ابھی آج 3 سال کے بعد ہمارا جی ڈی پی جو ہے وہ 2.6 اور 3% کے درمیان جو ہے اوپر نیچے ہو رہا ہے۔ ہمارا 3 سال کا جو انفلیشن ہے وہ 50% سے 55% کے درمیان چل رہا ہے۔ دن بدن مہنگائی ہوتی جا رہی ہے، لوگوں کی پرچیزنگ پاور
बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है कि अगर आज ये ऐलान करे कि जो जो पाकिस्तान छोड़कर जाना चाह रहा है वो आए, तो 2 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं यहां पर एम्बेसी के बाहर खड़े होंगे। ये आपकी गलत पॉलिसियां है। लंदन में बैठकर अगर आप बंद कमरों में रिजीम चेंज ऑपरेशन का फैसला करेंगे तो आपकी मईशत का ये हाल होगा, आपके सूबों का ये हाल होगा, और फिर ऊपर से ऐसे लोग बिठा दें जो एक सूबे के साथ मुसलसल इम्तियाजी सलूक कर रहे हैं। मतलब हमारा एयरफोर्स का जहाज एक वज़ीर आला को एक सूबे से दूसरे सूबे तक और मुल्क से बाहर लेकर जा रहा है, और दूसरे सूबे का वज़ीर आला वो उसका पासपोर्ट स्टॉप लिस्ट में है। एक सूबे को तमाम तर वसाइल दिए जा रहे हैं, और IMF ये रिपोर्ट कर रहा है कि 5,300 अरब रुपए की करप्शन हुई है और पाकिस्तानी आवाम के हक पर डाका डाला गया है। उस पर तो चुप। ये आज मैंने आप सब के लिए तमाम दोस्तों के साथ खैबर पख्तूनख्वा के जितने बकाया जात हैं वफाकी हुकूमत पर ये आपके सामने हैं। ये 4,758 अरब रुपए, ये मैंने तमाम दोस्तों के लिए आज सबूत लाए हैं। ये हमारा वफाक पर वाजिबुल अदा है। 5,300 अरब करप्शन जो रिपोर्टेड है IMF की रिपोर्ट में, वो कर रहे हैं, लेकिन हमें जो है हमारा हक नहीं दिया जा रहा। एक तो हक नहीं दिया जा रहा, दूसरा खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला सिर्फ अपने लीडर से मिलना चाहता है, वो 10 दफा अडियाला जेल जाता है, उसको मिलने नहीं दिया जाता, और बाहर जो है सड़क पर पूरी रात गुजारता है। ये कहां की जमहूरियत है? ये कहां की इंसानियत है? ये कहां की सियासत है? इसके साथ साथ खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने भी आ जाते हैं कि हमारा लीडर, हमारा कायद जनाब इमरान खान साहब कहते हैं ये नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है। ओ बेवकूफो, ये नेशनल सिक्योरिटी रिस्क नहीं है, ये आपकी नेशनल सिक्योरिटी की जमानत है इमरान खान साहब। ये आपकी नेशनल इंटेग्रिटी की जमानत है, ये आपकी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की जमानत है। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं कि पाकिस्तानी कौम अगर आपसे नाला है और आपसे नफरत करती है तो सिर्फ एक रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद अपना ग्राफ देखें, उस लीडर के लिए लोगों की मोहब्बत देखें दिल में। 8 फरवरी का रिजल्ट जो आप लोगों ने चेंज किया है और किसी और के खाते में डाल दिया है, पता तो है ना, मालूम तो है कि आप लोगों ने क्या किया है। जरा वो रिजल्ट देखें कि लोगों की पल्स क्या कहती है, लोग चाहते क्या हैं। इस तरह के फैसलों से पाकिस्तान अगर पहले आप लोग करते थे तो वो सोशल मीडिया का दौर नहीं था, आज सोशल मीडिया का दौर है। हमारे काशिफ अब्बासी साहब ने बातें की सहाफियों पर पाबंदियों के और हमारे मीडिया चैनल्स पर पाबंदियों की। आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, क्या क्या छुपाओगे। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी एस्टेब्लिशमेंट आजकल पाकिस्तान का सोशल मीडिया है, जो पूरी दुनिया को हकीकत दिखा रहा है, आप लोगों का असल चेहरा दिखा रहा है। जो जिनका काम है वो उनको बता रहा है कि आईन आपको ये इजाजत नहीं देता कि आप सियासत में मुदाखलत करें। आईन आपको ये इजाजत नहीं देता कि आप अवाम के मैंडेट पर डाका डालें। आईन आपको ये इजाजत नहीं देता कि आप एक चिट के जरिए जजेस पर फैसला करवाएं। अच्छा, अदालतें, हमारे जजेस इतने बेबस कि वो खुद लेटर कर रहे हैं कि हमारे फैसलों में मुदाखलत हो रही है, लेकिन शर्म और हया किसी में है ही नहीं। जो लोग मैंडेट चोरी के जरिए हुकूमत का हिस्सा है, वो सारी रात टीवी पर बैठकर बेशर्म की तरह बातें करते। मतलब मुझे तो समझ नहीं आती कि ये शर्म, हया, इज्जत, गैरत इन्होंने अलमारी में बंद कर रखी है कि पता नहीं कहां पर रखी है, और ताले भी लगाए हुए हैं कि जिस तरह का वो झूठ बोलते हैं लोग जो है देख नहीं सकते अब इनके चेहरे। लेकिन इस तरह ये मुल्क चलेगा नहीं। ठीक है, आप अपनी अना बुग़्ज़ में एक आदमी को तो वो जेल में बिठाया हुआ है नाहक, उसकी अहलिया बुशरा बीबी को बिठाया हुआ है नाहक जेल में,
ان کی بہنوں پر آپ تشدد تو کر رہے ہیں, उनके कारकुनों पर आप जो है वो लाठी चार्ज कर रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, चादर चार दीवारी की पामाली मुसलसल कर रहे हैं, लेकिन इससे आप लोगों के दिल जो है वो अपनी तरफ मोड़ नहीं पाएंगे. ये आप पाकिस्तान को मजीद खराब करेंगे, इससे जो है इदारे मजीद कमजोर होंगे, इससे लोगों के दिलों में इदारों के लिए नफरत मजीद बढ़ेगी, और इससे जो आप पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, जिस पर मैंने कल भी बात की कि हम 80,000 अरब रुपए के मकरूज हो चुके हैं आज, जिसमें 36,000 अरब रुपए हमारा बैरूनी कर्जा है जो हमारे डॉलर के रेट के साथ मुंसलिक है. हमारा डॉलर का रेट फॉरेन रिजर्व के साथ मुंसलिक है. हमारे फॉरेन रिजर्व अगर आज 20 बिलियन डॉलर हैं तो इसमें आपका 70% हिस्सा या IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक के लोन का है, या दोस्त ममालिक ने आपको जो है खैरात दी हुई है वो पड़ा है. 3 से 4 अरब रुपए जो है वो आपके फॉरेन रिमिटेंसेस हैं. एक्सपोर्ट तो है ही नहीं, क्योंकि आपका ट्रेड डेफिसिट जो है वो 15 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है. तो अगर आप से ये पैसा दोस्त ममालिक ने और IMF ने वापस मांगा तो आपके डॉलर का रेट 282 रुपए पर जो इन्होंने आर्टिफिशियली लॉक किया हुआ है ये 400 से तजावुज कर जाएगा, 400 रुपए से बढ़ जाएगा. तो ये 36,000 अरब रुपए ये ऑटोमेटिकली आपके 50,000 अरब से बढ़ जाएंगे, और आपका टोटल GDP 1,12,000 अरब रुपए है. 80,000 अरब रुपए इसका 72% बनता है. जब ये आपका बैरूनी कर्जा 50,000 अरब रुपए से बढ़ेगा तो आपका मुल्क दिवालिया हो जाएगा. फिर आप कहां जाएंगे? आपका डिफेंस का बजट कहां जाएगा? आपको जो है ये 5,300 अरब रुपए का IMF का रिपोर्टेड जो आप करप्शन कर रहे हैं, आपके पेट कहां से भरेंगे? मुल्क तो दिवालिया कर चुका होगा. तो तमाम दोस्तों को यह समझना होगा, हमारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं इनको भी, जो बंद कमरों के फैसला साज हैं, मंसूबा साज हैं, उनको भी, जो उनको मशवरे देते हैं गलत उनको भी, कि ये जंग सिर्फ इमरान खान की नहीं है, ये जंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं है, ये जंग पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम की है. ये जंग हमारे आने वाले बच्चों की मुस्तकबिल की है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ इमरान खान ने टेका नहीं उठाया हुआ कि उसका और उसका खानदान कुर्बानी देगा. इसमें हम सब ने अपना किरदार अदा करना है, हम सब ने कुर्बानी देनी है, हम सब ने कड़ा होना है, और इंशाअल्लाह ताला हम सवाल भी करेंगे, हम एहतजाज भी करेंगे, हम अपने हक के लिए खड़े भी होंगे, और अपने हक के लिए खड़े होते होते अगर शहादत भी मिलती है तो इंशाअल्लाह ताला उससे दरेग नहीं करेंगे. मैं तहरीक आईन तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और हमारे जितने भी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज यहां आई है, उन सबको ये यकीन दिलाता हूं कि पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए, आज़ाद मीडिया की बहाली के लिए, आज़ाद अदलिया की बहाली के लिए, आईन की बहाली के लिए, पाकिस्तान की खुदी और खुददारी की बहाली के लिए मुझसे बहसियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक आम कारकुन और सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव मैं आपके साथ खड़ा हूं. आपके हर फैसले में आपके लिए मैं आपके साथ इंशाअल्लाह ताला चट्टान की तरह खड़ा हूंगा, और आप मुझे पहले सफ में पाएंगे. शुक्रिया मेरा.